everybody and welcome to an all new YouTube video. मैं हूँ अभी राष्ट्रपति भवन में and to be precise I'm actually standing in the gardens in front of राष्ट्रपति भवन. मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं those are the east lawns and the garden in front of me which is behind the camera are the central lawns. So it's truly iconic to be witnessing this for myself and also documenting it for a YouTube video, and I'm truly very excited to be taking you around Amrit Udyan in today's video. तो यहाँ आने के लिए एंट्री जो है इट्स फ्रॉम गेट नंबर 35. दिस इज द लैंडमार्क वेयर यू हैव टू रीच अगर आपको अंदर एंटर करना है तो. एंड टू गेट अ स्लॉट यू हैव टू प्री बुक इट ऑनलाइन, जिसका वेबसाइट लिंक ऑब्वियसली मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. जो अमृत उद्यान है इट ओपन फॉर जनरल पब्लिक फ्रॉम द 31st of January एंड इट्स गोइंग टू रिमेन ओपन टिल द 26th of March. एंड उसके बाद कुछ ऐसे दिन भी होंगे जिसमें इट विल ओपन फॉर सम स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पीपल, जैसे कि फार्मर्स, डिफरेंटली एबल्ड, इवन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, एंड दैट इज सच अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव. अमृत उद्यान पूरा का पूरा व्हील चेयर accessible है, so anybody can come over here without any problem and you're going to have a wonderful time. And one major reason why you should definitely come here is not only because the gardens are beautiful but also because it's absolutely free for public. So यहाँ पे जो आपको cars दिख रही है ना, these are actually staff cars because जितने भी यहाँ पे staff members हैं they actually stay within the estate. The estate is almost 330 acres big and there are so many gates to come to this place. In fact, आज सुबह जो मैं आ रही थी I was supposed to come to gate 35 but मैं unfortunately gate 5 पे पहुँच गई. So needless to say you need to be at the right gate to be able to enter. Once you cross security, यहाँ पे काफ़ी wide roads हैं. In fact, you'll be able to see these markers and you have to reach the place जहाँ से अमृत उद्यान की entry है. This is the herbal garden जहाँ पे आपको different types की herbs दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पे there are 3 varieties of mint. Then we also have the mask rose जिससे musk बनती है, gulukan बनता है. And then there is this very interesting plant जिसका actual name ही Google है. So I did not even know that kind of a plant existed. So this is basically the area जहाँ पे सारी herbs grow होती हैं and you can come over here and take inspiration of what all herbs can you grow in your home gardens as well. So मेरे पास है यहाँ पे some stevia leaves. So stevia अगर आपको पता हो is a very good organic sugar alternative जिसमें calories नहीं होती. So it's for the calorie conscious, they can purchase stevia from the market. But ये actually stevia का leaf है and इसको हम लोग खा भी सकते हैं. It is so nice and naturally sweet. काश ये मेरे रोज़ का dessert हो सकता. What did I just find here? This is actually chamomile. Chamomile की tea बनती है. So this particular plant is Metrogeria chamomile. And I am a big fan of chamomile tea. अगर आपने नहीं try की, this is something you need to try, especially before sleeping, because then you sleep practically like a baby. I'm not even kidding. I started consuming chamomile tea recently और मुझे इतनी अच्छी restful sleep मिलती है. Either you can try growing it, or you can obviously get it from the market. But in this case, it's growing beautifully over here. So do you know that if you grow chamomile in your homes, you can actually just pluck these flowers when they're at this particular stage of full growth, and dry them. पहले water को boil कर दो, उसके बाद put the dry flowers in it and you can have some very delicious chamomile tea. But obviously I've tried growing these flowers and they're not easy to grow at all, especially from seeds. It's very good to see them in Delhi because इससे पहले मैंने chamomile flowers सिर्फ लद्दाख में देखे हैं. Amrit Udyan was also formerly known as Mughal Gardens because of the architectural style of the gardens over here, which is basically Lady Hardinge's idea when she was the Viceroy's wife over here. And जो राष्ट्रपति भवन का architecture है, उनके जो architect थे Edwin Lutyens and Herbert Baker. And the reason I know this is because I was really keen on understanding the architecture of Lutyens Delhi at one point of time because of all the books that I was reading in that era. So I am extremely excited about seeing Rashtrapati Bhavan up close and personal as well. क्रिस चौहान. ओके, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है. कैसा फ्लावर्स आपको अच्छे लगते हैं देखने में? हाँ जी.
आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी अभी तक की? फ्लावर्स ही लगा। फ्लावर्स ही। और सबसे फेवरेट फ्लावर कौन सा लगा अभी तक का? रोज। रोज। थैंक यू। So now we are in the formal gardens and these gardens have everything, left side, right side, mirror image. और जितने भी यहाँ के lawns हैं, they're all geometric, all rectangular and all kept in such perfect shape and form. इसलिए इन्हें फॉर्मल गार्डन्स कहा जाता है। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे वाटर चैनल्स भी 4 हैं, सब मिरर इमेज फॉर्म में है। एंड ईच वाटर चैनल हैज़ एन इंटरसेक्शन जिसमें एक फाउंटेन है। सो नीडलेस टू से एवरीथिंग ओवर हियर इज इनक्रेडिबली ज्योमेट्रिक, इनक्रेडिबली सिमेट्रिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट लॉन, टुवर्ड्स द सेंट्रल लॉन, एंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लॉन्स वी हैव दिस रंगोली विच वाज स्पेशली मेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे। सो रिसेंटली दिस हैज बिकम अ ट्रेडिशन ओवर हियर कि रिपब्लिक डे के बाद हमेशा यहाँ पे रंगोली बनाई जाती है, फ्लावर रंगोलीज, एंड इट्स लुकिंग so beautiful. And also on my right you will see that there are tulips. These tulips are actually imported from Holland and they're blooming. I can't even explain to you how good they're smelling at the moment. आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत सारी varieties of tulips देखने को मिलेंगी right up till March because they plant it in such a way that इनकी 45 days की cycle होती है and they're going to be blooming periodically so that you can enjoy them for the entire duration that this garden is open. So this year you will notice that there are these QR codes which have been set up everywhere. तो आप इस QR कोड को एक्चुअली स्कैन कर सकते हो एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि ये कौन से प्लांट्स हैं, कौन से फ्लावर्स हैं, किस क्या वैरायटी है, क्या स्पीशीज़ है। तो पीपल लाइक मी जिनको प्लांट्स बहुत पसंद है, आई थिंक दिस इज अमेजिंग। तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे है मिस्टर अवनीश हु इज द गार्डन इंचार्ज ऑफ अमृत उद्यान। सो हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे स्पेशली अबाउट हाउ द गार्डन इज टेकन केयर ऑफ। तो एग्जैक्टली आपका यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो हमारे पास जो गार्डन है, क्योंकि यहाँ मैडम वॉकिंग करते हैं, सुबह भी घूमते हैं, शाम को भी करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ मैडम की नज़रों में तो उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा जो कोशिश रहता है कि पूरे साल खिलता है और उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें हम लोग करते हैं। अगर जैसे आप अभी गार्डन देख रहे होंगे तो इस साल हमने लगभग 85 स्पीशीज़ तो फ्लावर एंड का किया है और उसके अंदर 120 स्पीशीज़ हमारे पास लैब्रेटरी रोजेज की है, जिसमें वर्ल्ड फेमस ब्लैक रोज, ओक्लाहोमा और भी ग्रीन रोजेज, ये वैराइटीज़ भी हमारे पास। और जो यहाँ के रोजेज हैं क्या वो एनुअली ब्लॉसम करते हैं या नहीं, एक्चुअली अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो हम लोग कटिंग करते हैं वो तो करते हैं अक्टूबर के बाद। और जहाँ मुगल गार्डन के अंदर हमको 2 फ्लैशेज मिलते हैं। जो पहला फ्लैश है वो दिसंबर के एंड में आता है और जो सेकंड फ्लैश है वो फरवरी के अंदर आता है, क्योंकि आप अभी भी देख सकते हैं कि जितने भी गुलाब हैं क्यारी के अंदर सब ब्लॉसम। ओके। और आप यहाँ पे कितने टाइम से इस मुझे लगभग यहाँ पे 9 साल हो गए काम करते 9 साल, वाओ। और 9 साल से हम सेवा कर रहे हैं और जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हर साल कुछ ना कुछ हम लोग नया ऐड करें। और अब क्योंकि आप सब अभी समय आए तो आप एक रंगोली फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। सो अवनीश, आई जस्ट नोटिस दैट यहाँ पे एक सिंगल फ्लावर बेड में बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फ्लावर्स हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट? तान्या जी, जो हम इस बार कर रहे हैं, एक तो गार्डन क्योंकि हम 2 महीने के लिए खोल रहे हैं। हाँ जी। तो एक जो चैलेंज हमारे पास जो सबसे बड़ा है कि पूरे 2 महीने सबको फ्लावर दिखाना एक अपने आप में हमारे लिए एक टास्क भी है और चैलेंज भी है। तो जो हमने इस बार सोचा है, जो पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो है एक रिले क्रॉपिंग का। ओके। तो रिले क्रॉपिंग में हम लोग क्या करें, जो फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड में हम लोग बल्बस क्रॉप और सीडलिंग से ट्रांसप्लांटिंग करते बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। ओके। तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि अगर कोई फ्लावर एक बार ख़त्म होता है तो नेक्स्ट रिले में फिर दूसरा फ्लावर वहाँ पर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली 2 महीने हमको बहुत ज़्यादा फ्लावर इस बार देखने वाले हैं। वाओ। एंड आपने मुझे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे केल भी है। सो इज दिस एडिबल एंड क्या यहाँ से केल्स आर एडिबल, केल खा सकते हैं हम लोग, बट दे आर मोर लाइक ऑर्नामेंटल थिंग है। तो उसका जो पत्ते हैं जो बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे एज ऑर्नामेंटल। बट क्या बाय चांस ये यहाँ से किचन में भी जाते हैं? जा सकता है, किचन में भी जा सकता है। ओके। बल्कि हम लोगों ने तो कई जगह अगर आप देखेंगे हम लोग तो सैलेड पत्ता और एस्पैरागस भी हम लोगों ने लगा रखा है। ओह वेरी नाइस। जो कि बिकॉज ऑफ ऑर्नामेंटल लीफ की वजह से हम उसको डिस्प्ले भी करते हैं और वो कंज्यूम भी कर सकते हैं। ओके। This behind me is the central lawn, and what you see in the central lawn is this beautifully made rangoli in the form of a floor carpet. And आप यहाँ पे आएंगे तो इसके साथ एक फोटो ज़रूर लेना। So जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक्चुअली फ्लावर के ऊपर कील लगी हुई है। So this is so beautiful। मैं वहाँ पे फ्लावर वापस लगा रही हूँ।
So we are over here with some visitors और आज हम उनसे पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. So आपको कैसा लग रहा है पूरा गार्डन? बहुत सुंदर गार्डन है. फ्लावर्स बहुत है, मेंटेन अच्छा है. फ्लावर्स है. क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि गार्डन इतना नहीं किया था. एक्चुअली हमने सोचा गार्डन वो भी लाइक सिंपल वन, बट ये बहुत खूबसूरत है. आपके वैरायटी ऑफ फ्लावर्स सो सबसे अच्छी यहाँ की व्यवस्था है जो स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई है. हाँ. ये व्यवस्था बहुत अच्छी है. राइट कि बिल्कुल आपको एंट्री का कोई process दिक्कत बहुत- नहीं है, कोई कोई- दिक्कत नहीं, है. सुलभ है. एकदम सिंपल सुलभ और सुगम. भी और जल्दी से हो गया. Very nice. तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं? Yes, हाँ. yes. कौन कौन है? मेरे फादर है, अच्छा आप प्लीज आइए ना. मेरी मदर उधर है, ये दोनों मेरी डॉटर है. ओके हेलो आपको कैसा लग रहा है? वेरी फाइन. वेरी फाइन. निशात गार्डन और मुगल गार्डन कश्मीर का हमने देखा हाँ है, जी. उससे कहीं फार बेटर है ये. अच्छा. बहुत खूबसूरत. Thank you so much. So this year we also have a lot of guides over here who can take you around the garden and tell you in detail everything that you want to know about it. हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इस गार्डन का एरिया कितना है? ये 15 एकड़ में गार्डन है. अच्छा 15 एकड़ में पूरा जो घूमने के लिए, बट पूरा एस्टेट कितना है? पूरा 330 के अराउंड है. 330 एकड़ के नाम है जी. और आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शिखा सेन है. शिखा. आप PhD स्टूडेंट है कहाँ पे? IRI पूसा कैंपस. जो विजिटर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर तीनों सीज़न के फ्लावर्स हमको देखने को मिलेंगे. विंटर सीज़न के देखने को मिलेंगे, समर सीज़न के, रेनी सीज़न के. अगर हम बच्चे हैं दे आर नोटिंग डाउन द वेराइटीज़ एंड फ्लावर्स. बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि अच्छा लग रहा है उनको भी. वो बाकी विजिटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं. दिल्ली के 5 to 7,000 अराउंड हो रहे हैं. एंड आई थिंक एक्सपेक्टेड फुटफॉल कुछ 1 मिलियन के अराउंड है. 1 मिलियन विजिटर्स आएंगे पूरे सीजन में. सो ओवर हियर इन द सेंट्रल लॉन देयर आर 4 वाटर चैनल्स और हर वाटर चैनल का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे एक फाउंटेन देखने को मिलेगा आपको. एंड इट इज़ इन द शेप ऑफ अ लोटस फ्लावर. बिकॉज आई एम स्टैंडिंग सो क्लोज टू द फाउंटेन राइट नाउ, नॉट ओनली कैन यू हियर इट बट आई कैन ऑल्सो फील लिटिल स्प्रिंकल्स ऑफ वाटर कमिंग ऑन मी एंड इट्स सच अ गुड फीलिंग. I can't even begin to explain how beautiful these gardens are. In fact, if you will see over here, there are these layers and layers of flowers that are so well maintained and so beautiful, and they're also smelling very good right now. These over here are some 8 feet tall dahlias. In fact, इसमें कुछ ऐसे honey bees भी यहाँ पे hover कर रही है and I can see them up close and personal. The way this garden is planned is कि अभी सारी color scheme flowers की bright रखी गई है and the tallest flowers are placed at the very back of the flower bed and उसके आगे जो है shorter flowers are placed just so that it looks more aesthetic and scenic and also neat. Friends, the last time I saw so many dahlias was actually in the wild जब मैं कसौली गई थी. And to see them again, that too so up close and personal and so many of them, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. तो मेरे साथ है अभी विद्यासागर जी जो पूरे गार्डन के सुपरवाइजर हैं. पहले सितंबर से यहाँ प्लानिंग शुरू हो जाती है हमारी. अच्छा. मैप बनाते हैं पहले. तो शेडेड प्लांट कहाँ हाँ, लगेंगे जी, और जी, सन जी, वाले प्लांट जी, और फ्लावर्स जी. कहाँ लगेंगे, हाँ, ये पूरी आप प्लानिंग पूरी पहले प्लानिंग हो जाती है फिर उसको नीचे उतारा जाता है. अच्छा. और ये जो पौधे हैं ये सीड से उगाए जाते हैं या सैपलिंग से? ये सीड से है सारे. सीड से है. हाँ, सीड अपना तैयार करते हैं खुद हम. कुछ सीड हम बाजार से परचेज करते हैं और ज़्यादातर तो हम अपना ही होता है. और एक और चीज़ बताइए मुझे, सीड से तो उगाना बहुत मुश्किल होता होगा क्योंकि सैपलिंग से जल्दी उग जाते हैं पौधे. हम पूरा डायरेक्ट इसमें सोइंग करते हैं. जैसे बड़ा एरिया देख रहे हो पोर्शन का, हाँ जी. उसमें कुछ जो बाजार से सीड आता है वो हम अपना सीड बेड में तैयार करते हैं. वहाँ से निकाल के फिर दूसरी जगह लगाते हैं. ओके. जी. और कोई पक्षी वगैरह होते हैं जो परेशान पक्षी- करते हैं आपको बहुत पक्षी, ज़्यादा? बंदर हैं, मोर हैं, उनके देखभाल के लिए हमें चौकीदार लगाना पड़ता है. ओहो. जैसे यहाँ की घास है, जी. बाहर जितनी भी घास होगी दूसरे लॉन में वो अभी तक सूख चुकी होगी, लेकिन यहाँ की घास अभी भी हरी हरी है, इतनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है. जी, जी. तो उसका क्या सीक्रेट है कि आप कैसे मेंटेन इसका करते हैं? सीक्रेट ये है, हम इसका बहुत ध्यान रखते हैं और हाँ जी. इसका लेवल जो है घास काटने का वो अलग से मशीन है हमारे अच्छा. पास, तो उससे उसका लेवल एक बराबर रहता है. ओके. और पानी का इसका देख है, फर्टिलाइजर है, उसका भी ध्यान रखते हैं. जो वीड है, वीड भी हम बार बार इसको निकालते रहते हैं. अपना सीक्रेट बताएंगे कि आप कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं? फर्टिलाइजर तो इसमें यूरिया है, हाँ ज़्यादातर जी. हम यूरिया डालते हैं. अच्छा. और गोबर की खाद और ओखला कम डालते हैं, हाँ जी. उससे वीड हो जाता है ज़्यादा. ओके. सो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुली मैनिक्योर्ड. दिस इज़ अ जूनिपर एंड इट्स वेरी अनलाइकली दैट दीज ग्रो इन नॉर्मल प्लेन्स ऑल्सो. जैसे कि ये सिर्फ राष्ट्रपति भवन में है, ताज गार्डन्स में है एंड आपको कश्मीर के भी कुछ गार्डन्स मिल जाएंगे. बट दीज एक्चुअली ग्रो इन द माउंटेन्स एंड टू फाइंड देम हियर इन राष्ट्रपति भवन इज़ ट्रूली अ सरप्राइज. It just goes on to show that everything over here is so well kept and so well maintained. This is an actual black rose.
So the age of this black rose plant is probably 50 years because if you look at the base of it, उसका जो woody stem है, उसका जो woody part है, it's so big that just goes on to show कि इसकी कितनी बार cutting हुई है और कितनी बार it has regrown. And every year in the month of October इसकी cutting की जाती है, and that shows the age of the plant. An actual green rose over here और ये उसका flower है, ये उसकी बहुत सारी buds हैं आसपास. It's incredible just what all is growing over here. So we are now in the long garden and इसका नाम I think long garden इसलिए because it's in the long rectangular form. इसमें इतने सारे flower beds हैं and all of them mostly contain roses. So यहाँ पे enter जैसे आप करोगे you'll be just hit with this very beautiful smell of roses. I'm very fond of roses honestly. मेरे को roses grow करना भी बहुत अच्छा लगता है. I actually have 4 rose plants in my house also. Very humble as compared to how many rose plants you see over here. So the number of varieties, the amount of species, I am just honestly blown. And I feel like you have to be a true lover of plants or just have a lot of patience to grow roses. And I'm pretty sure it shows that how much care is taken of these plants over here. This is an iceberg rose, so beautiful. Everyone, we found a follower. ये है रिचा. कैसे हो आप? बढ़िया. How are you liking the garden? Very nice. Very nice. ये वाला एरिया बहुत अच्छा है ना? Yes. आप मुझे कहाँ से जानते हो? कौन से प्लेटफॉर्म से? फेसबुक से? वाओ, so good to see you. आप YouTube वीडियोस नहीं देखते हमारी? YouTube कम देखती हूँ. कम देखते हो, कोई बात नहीं. ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? Thank you. Thank you. Nice to meet you. So these what you see over here are kumquats. They are not oranges. इनको kumquat बोलते हैं. In fact इसकी टी होती है जो बहुत famous होती है. मैंने वियतनाम में ट्राई की थी because these plants are very common in at least the northern side of Vietnam. They are incredibly delicious. Now we are at one of the most beautiful areas of Amrit Udyan. इस एरिया का नाम है Circular Garden and it's in the shape of a circle obviously. और इसमें जितनी भी क्यारियाँ हैं उसमें बहुत सारी varieties के flowers हैं and they're all beautifully designed in a way कि उनकी height छोटे से शुरू हो और सबसे ज़्यादा जो tall plants है वो एकदम back में है. So along the edge जहाँ पे लोग walk कर सकते हैं वहाँ पे डालियाज लगे हैं बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे एंड उसके सिवाय बहुत सारे और वैरायटीज़ के भी फ्लावर्स हैं जहाँ पे जैसे यहाँ पे लूपिन्स हैं, then there are California poppies over here, viola, phlox, Leptosinia, white stocks, French marigold, dianthus, and then there are calendulas over here on the lower level. So needless to say बहुत ही सुंदर जगह है and plus the fountain in the center is literally the main attraction. इनफैक्ट अगर मैं बाकी के गार्डन्स को देखूँ भी ना, ओनली इनसाइड द सर्कुलर गार्डन देयर आर सम 30 स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स इंक्लूडिंग ट्यूलिप्स. सो अभी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भी मिल गए जिनका नाम है जयंत. हेलो. और उनके पेरेंट्स भी आए हैं यहाँ पे उनके साथ में. तो आपको कैसा लग रहा है पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे आने का? फर्स्ट टाइम हम लोग 2004 में लास्ट टाइम विजिट किए थे. अच्छा. तब मैं 4 साल का था. ओह माय गुडनेस. और काफ़ी टाइम हो गया. तो आपको कैसा लग रहा है रीविजिट करके? बहुत बढ़िया मैम. तब का तो कुछ याद नहीं है. हाँ. पर अभी तो काफ़ी जैसे यहाँ पे रोजेस देखे और एक म्यूजिकल गार्डन था वो काफ़ी बहुत बढ़िया. और अंकल आंटी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. आपका फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरा एंट्री से लेके यहाँ तक अच्छा रहा? हाँ, बढ़िया. ओके, थैंक यू सो मच. हाँ, वेलकम. So this was my complete experience of visiting Amrit Udyan and honestly I am so blown with the variety of flowers here and it's so beautiful. And please do plan your visits over here before it closes for general access and you have to make it here to see just how beautiful it is. Alright, with this I am going to sign off and I'll see you next time in a whole new video. Bye bye!